للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، قائدین جماعت اسلامی اور اس مجلس میں شریک قابل صد احترام میرے ہم سفر ہم قدم انقلابی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں سب سے پہلے اس خوبصورت اجتماع کے انعقاد پر وقت کی ایک ضرورت تھی، مرکزی نظم کو شاباش اور مبارکباد دیتا ہوں۔ آج کا موضوع بہت دلچسپ بھی ہے اور پوری دنیا ہے، عالمی تبدیلیوں کا عنوان رکھ کر اس کے لیے تو ایک دن پورا چاہیے، لیکن بہرحال اختصار کے ساتھ میں بات کروں گا کہ میں نے جس آیت کی تلاوت کی اس میں اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ مومنوں کا ساتھی ہے اور ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور کافروں کے ساتھی شیطان ہے، ان کو روشنی سے اندھیروں کی بجائے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ آپ کو روشنی کی طرف لاتا ہے اور شیطان آپ کو اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ اب قرآن کی اس آیت میں نور بیان کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نور ایک ہے، حق ایک ہے، اور اندھیروں کے لیے ظلمات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ظلمات اصل میں وہ سب اندھیرے ہیں، وہ فتنے ہیں جو ہر زمانے میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ انہیں شر کے بے شمار رنگ ہے۔ شرک ایک فتنہ ہے، آج کا سرمایہ دارانہ نظام ایک فتنہ ہے، بادشاہتوں کا نظام ایک فتنہ ہے، کمیونزم ایک فتنہ ہے، بے خدا شریعت کے بغیر جمہوریت ایک فتنہ ہے، نیشنلزم ایک فتنہ ہے، نفس پرستی فتنہ ہے، وطن پرستی فتنہ ہے، وطن پرستی فتنہ ہے، اور یہ سب شیطان کے چالے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بدلتے حالات کیا ہیں؟ تو اگر آپ لوگوں نے کہیں شطرنج کھیلا تو نہیں ہے، دیکھا ہوگا کہ شطرنج کے کھیل میں ایک آدمی ایک وقت میں بادشاہ ہوتا ہے، ایک قاضی ہوتا ہے، ایک چور ہوتا ہے۔ اگلے مرحلے میں آپ قاضی کو چور پائیں گے اور چور کو بادشاہ کی جگہ پر۔ اس لیے اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی شکل بدلے ہیں، کردار نہیں بدلا ہے۔ یعنی آج سے اگر آپ 6500 سال قبل جائیں تو اسی میدان میں جہاں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسی شکل میں ایک آدمی کھڑا ہے جس کا نام جالوت ہے، اور وہ سر تا پاؤں لوہے میں محفوظ ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک اور لڑکا کھڑا ہے جس کا نام داؤد ہے، وہ بالکل ینگ ہے اور اس کے ہاتھ میں غلیل ہے، اور غلیل اس زمانے کے ایک اور طریقے کا تھا کہ جس میں ایک تار کے ساتھ ایک داغے کے ساتھ پتھر باندھتا تھا اور اس کو گما کر پھر دشمن کو ہٹ کرتے تھے۔ اب جالوت سرتا پاؤں لوہے میں محفوظ تھا، لیکن داؤد نے صرف ان کی ایک جگہ کو ہٹ کیا اور ان کے آنکھ تھی، اور پتھر اندر جا کر ان کے دماغ میں گیا اور وہ ڈیر ہو گیا، اور داؤد جیت گئے اور جالوت مر گئے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طاغوت سے انکار کرو، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ،
इस्लामी तहरीक वही है जिसने तागूत से इनकार किया है। तागूत हर उस लीडर का नाम है, हर उस पार्टी का नाम है, हर उस मुल्क का नाम है, हर उस ग्रोह का नाम है जो मखलूक खुदा को खालिक की बजाय अपने तरफ बुलाते हैं, जो अपनी खुदाई की बात करते हैं। इसलिए इस्लामी तहरीक आज का हो या इस्लामी तहरीक कल का हो, इन्होंने हमेशा हमेशा से इस तागूत से बगावत किया है। वो मलूकियत की शक्ल में हो, वो यजीदियत की शक्ल में हो, वो कम्युनिज्म और सोशलिज्म की सूरत में हो, वो सरमायादाराना निजाम की सूरत में हो, वो अमरीयत की सूरत में हो, या खुदा से आजाद जमहूरियत की सूरत में हो। तागूत इस दुनिया में आज भी और कल भी जिस शक्ल में मौजूद है, इस्लामी तहरीक का ऐलान उससे बगावत। प्यारे भाई और मोहतरम दोस्तों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आलमी तब्दीली और हमारी जिम्मेदारियां, ये किसी ने सही कहा है कि सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगय्युर को है जमाने में। ये जो तगय्युर है, यानी कायनात में तगय्युर और तब्दीली, जिस वक्त ये रुक गया तो इस कायनात की मौत वाक़ई होगी। आपका दिल एक लम्हे के लिए रुकता है तो मौत वाक़ई हो जाती है। ये जो जिंदगी है, ये जो जिंदगी का हुस्न है, ये हकीकत में कश्मकश में है, ये हरकत में है। अब पानी का कतरा हरकत करता है तो समंदर बनता है। एक बीज जब आप उसको मिट्टी में डालते हैं और 72 घंटे बाद वो सोने की बजाय वो हरकत में आता है, और चंद दिन बाद आप देखते हैं कि वहां एक पौधा, एक फिर दरख्तों पर पत्तों के साथ फिर फूल, और फूल के बाद आपको फल मिलता है, ये हरकत के नतीजे में। इसी तरह कौमें हैं, जब कौमें रुकती नहीं है और हरकत में होती है, जद्दोजहद में रहती है, टारगेट ओरिएंटेड जद्दोजहद उनकी होती है, तो उनको दवाम, तसलसल, इज्जत, इमामत और क़ियादत मिलती है। शायद इकबाल ने सही कहा है कि रोही उमम की हयात कश्मकश इनकलाब, जिसमें न हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रोही उमम की हयात कश्मकश इनकलाब। तो ये इनकलाबात है। आपने देखा होगा कि जब खजान गुजरता है और बाहर का मौसम आता है तो जबरदस्त हवाएं चलती हैं। उन हवाओं के नतीजे में अल्लाह ताला इन पौधों और दरख्तों की शाखों को खूब हिलाता है। एक जबान में उसको जाकड़ कहता है। वो जाकड़ की वजह से, उर्दू में क्या कहते हैं, उसकी वजह से वो शाखें हिलती हैं और फिर कहीं जाकर वहां एक मौसम बहार के इस्तकबाल की तौर पर उनके पत्ते हरे हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि जब से हमारे उम्मत मुस्लिमा पर जमूद तारी हुआ है और उम्मत मुस्लिमा ने जिहाद छोड़ा है और उम्मत मुस्लिमा ने जिंदगी और दुनिया की क़ियादत का ख्वाब छोड़ा है और उम्मीद की शम्अ को बुझाया है, तो उसकी मौत वाक़ई हो गई है। और आज वही आलमी इस्लाम है कि कब्रिस्तान की तरह तो मौजूद है लेकिन कोई जिंदगी नहीं है। मोहतरम भाइयों, आलमी हालात के हवाले से मैं इतना ही अर्ज करूं कि गैरुल्लाह का निजाम है। देखिए, आज अगर हम इटली में होते तो हम आलमी हालात को, तब्दीली को एक और नजर से देखते, इसलिए कि वहां के इश्यूज और है। वहां के इश्यूज है एनवायरमेंट, वहां के इश्यूज है मौसमी तब्दीलियां, वहां की इश्यूज है साइबेरिया की ग्लेशियर का पिघलना, वहां की इशू है सफेद रीछ का गायब होना, वहां की इश्यूज है तारिकीन वतन जो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, वहां के इशू है मईशत। कल भी फ्रांस के सदर ने ऐलान किया था कि हमारे यहां सबसे बड़ा मसला यही है कि महीने का आखिरी तारीख आ रहा है तो किस तरह महीना भर के बिल एक आम शहरी एक उम्मत की हैसियत से
जब हम इस दुनिया की हालत को देखते हैं, तो जब हम इंसानियत को नंगी हालत में देखते हैं तो परेशान होते हैं, मजलूमियत के साथ देखते हैं तो परेशान होते हैं। जब 7 बड़े ममालिक ने आलमी बदमाशों की तरह इस दुनिया पर कब्जा किया है, हराम और हलाल के फैसले वही करते हैं, अमन और जंग के फैसले वही करते हैं, और आजादी और गुलामी के फैसले वही करते हैं, अपने को सबने वेटो पावर दिया है, तो हमारा दिल खुलता है कि हम तो 2 अरब मुसलमान हैं, 58 इस्लामी ममालिक है, 8 समंदरों तक हमारा अप्रोच है, 23% दुनिया भर की इकोनॉमी है, 74 लाख फौज रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 2 बिलियन की आबादी के बावजूद भी हम इस दुनिया में वेटो पावर नहीं रखते हैं, और हमारे फैसले आज भी वही आलमी शैतान और वही लोग। उन्होंने फैसला किया मशरक़ तिमूर आजाद हो गया, उन्होंने फैसला किया सूडान के अंदर जनूबी सूडान आजाद हो गया, लेकिन उनका फैसला नहीं है कि कश्मीर आजाद हो, उनका फैसला नहीं है कि अराकान में लोगों को जिंदगी का हक मिले। लिहाजा हम भी रोते हैं, देखते हैं, तमाशा करते हैं, और वो तो चाहते नहीं है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जंग अजीम के बाद दुनिया में जंग अजीम में जब हर तरह लाशों के ढेर लगे थे और 7 करोड़ से ज्यादा इंसान हलाक हो गए थे, तो अमेरिका में 118 से ज्यादा थिंक टैंक्स बने और इसी बात पर सोच रहे थे कि बगैर जंग के हम दुनिया पर किस तरह कब्जा करें। लिहाजा उन तमाम फोरम ने मिलकर जो सजेशन दी है, आज अमेरिका और यूरोप उसके मुताबिक चल रहे हैं। उन्होंने यही तय किया था कि सारी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए हमें मईशत को कंट्रोल करना चाहिए, और ये IMF और ये वर्ल्ड बैंक और ये एशियन बैंक ये और कुछ नहीं है, ये दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका की टूल्स है। उन्होंने फैसला किया कि अपने मर्जी की हुक्मरान आलमी इस्लाम पर मुसल्लत होना चाहिए। लिहाजा उन्होंने अपने मर्जी के हुक्मरान मुसल्लत किए, और खुद एक अमेरिकी टैंक है जिनके फैसले के रोशनी में उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया। उस फाउंडेशन का काम यही है कि इस्लामी दुनिया के जो अहम खानदान है उनके नौजवानों को उठाकर अमेरिका ले जाते हैं, वहां पढ़ाते हैं, वहां उनकी तरबियत करते हैं, और आज उस फाउंडेशन को आप देख ले, उनके तरबियत याफ्ता लोग पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हुक्मरान बैठे हैं। उन्हीं का फैसला था कि हमें अपने मर्जी की फौजी क़ियादत मुसल्लत करनी चाहिए, और आज पाकिस्तान समेत मिस्र पर अलजायर पर उनके मर्जी के लोग मुसल्लत। का फैसला था कि तालीम और कल्चर को दुनिया पर कब्जे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था। उनका फैसला है कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए दुनिया की तिजारत को कंट्रोल करना चाहिए। उनका फैसला था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए दुनिया की सेहत को कंट्रोल करना चाहिए, और वो उन्होंने कंट्रोल किया। मल्टीनेशनल कंपनियों के जरिए उन्होंने दुनिया भर की इकोनॉमी को अपनी मुट्ठी में लिया है, और उन्होंने ये करके दिखाया। अगर इससे कोई काम नहीं हुआ तो फिर जंग मुसल्लत करते हैं। जिस तरह इराक और ईरान को आपस में लड़ाया, फिर इराक और कुवैत को आपस में लड़ाया, शाम को तबाह किया, इराक को तबाह किया, लीबिया को तबाह किया। लीबिया की करेंसी एक वक्त में सारी दुनिया में एक पावरफुल करेंसी है, आज लीबिया का नामो निशान आपको नहीं मिलेगा। वहां भी उसी तरह गुर्बत है, और सोमालिया की तरह वहां भी एक बदहाली और तबाह। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस बदलती सूरत हाल में आज भी कुरान का वही तबसरा है कि ज़ुहरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। बहरुबर में फसाद है इंसानों के अपने हाथों की वजह से। यानी अगर आज भी एक बटन किसी ने दबाया, और एक बटन दबाने से आपकी मौजूदा सारी दुनिया तबाह हो सकती है। इतना असला इंसान ने खुद अपनी तबाही और बर्बादी और जलाने के लिए और नेस व नाबूद करने के लिए इंसान ने खुद बने भाइयों। लेकिन अल्लाह ताला का ये एक
सुन्नत है कि जब भी कोई कौम अल्लाह के नाम पर जद्दोजहद के लिए आमादा होती है तो यह वादा सिर्फ तालूत के लश्कर के साथ नहीं था कि कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरा। ये उन लोगों के साथ अल्लाह ने वादा किया था कि जिनको कहा गया था कि आप इस लश्कर में शामिल है लेकिन आप पानी ज्यादा ना पिए, सिर्फ जरूरत का पानी पीकर गुजारा करे और आगे बढ़कर दुश्मन का मुकाबला करे। उनकी क़ियादत ने भी उनको समझाया कि अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, लिहाजा जिन्होंने पेट भरकर पानी पिया वो लेट गए और वो आगे चलने के काबिल नहीं रहे। लेकिन वो एक मुख्तसर जमात जिन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया और अपनी क़ियादत की बात मान ली, डिसिप्लिन का मुजाहिरा किया, अल्लाह ताला ने उनके साथ ये वादा किया था कि कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरा। आज भी अगर हम उसी तरह अल्लाह पर तवक्कुल करके अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद पर आमादा हो तो अल्लाह चाहता है कि हम गालिब हो। ये जो दुनिया की सूरत हाल है ये हमेशा मैं फिर भी कहूंगा कि देखे एक जमाना वही था कि जब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत किसरा को पहुंचा और उसमें उसने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नाम पहले लिखा है और किसरा का बाद, तो उन्होंने उस कागज को पाल दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह ताला जिस तरह इन्होंने मेरे खत को पाल दिया है उसी तरह उनकी रियासत और हुकूमत और मुल्क भी तितर बितर हो जाए। वो दिन फिर इंसानियत ने देखा कि मदाइन फतह हुआ और उनका ताज मुसलमानों के कदमों में था। फिर वो दिन लोगों ने देखा कि बाजान कैदी बनकर हजरत उमर की अदालत में हाजिर थे और जब एक पुराने प्याले में उनको पानी पेश किया गया उसने पीने से इनकार किया कि मैं मौत तो कबूल करता हूं लेकिन इस प्याले में पानी नहीं पी सकता हूं। और फिर सहाबाए कराम गुर्बत की वजह से कोई और बर्तन नहीं था, उन्होंने मदीना में एक बर्तन कहीं से ढूंढकर वो पानी उनको पहुंचाया। वही सूरत हाल है, कोई और नहीं है। और वही वादा है अल्लाह ताला का जो अल हय्युल क़य्यूम है कि वह अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। आप ही कामयाब होंगे अगर आप लोगों की दिलों में ईमान है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि देखिए दुनिया के पैमाने कुछ और है, हमारा पैमाना कुछ और है। हम जब भी पाकिस्तान की क़ियादत से बात करते हैं वो यही कहते हैं कि हमें मईशत में भी मुकाबला करना चाहिए, हमें फीकस आमदनी में भी इजाफा करना चाहिए, हमें सनतों में भी तरक्की करनी चाहिए। मैं मानता हूं सनती तरक्की जरूरत है, तिजारत में आगे बढ़ना जरूरत है, हर बच्चे को तालीम दिलाना भी वक्त की एक जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो हजरत इमाम मालिक ने फरमाया है कि इस उम्मत की इज्जत और इस उम्मत का बका और इस उम्मत का इस्लाह उसी तरीके से होगा जिस तरह कुरूनी ऊला में हुआ है। वो क्या तरीका था? वो कुरान से मोहब्बत, वो तक़वा की ताकत। यानी आप देखिए कि जिस वक्त रूम और पारस को भी शिकस्त हो रहा था उस वक्त हमारे मस्जिद नबवी में जलाने के लिए चिराग ही नहीं था। ये तो 9वीं हिजरी में तमीमी नामी एक आदमी मुसलमान हुआ तो उन्होंने मस्जिद नबवी के लिए चिराग का इंतजाम किया। और जब मिस्र और शाम भी पता हो गए उसी जमाने में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने बेटी की यही हालत थी कि जब बिलाल आ गए और उनसे मुतालिबा किया कि मेहमान आए हैं उनके लिए कोई खाने का इंतजाम हो, तो फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गुर कुछ नहीं था तो उन्होंने अपना दुपट्टा उनके हवाले किया, बिलाल के हवाले, और फरमाया कि जाओ शमऊन एक यहूदी है उनके घर जाकर फरोख्त करके जो कुछ हासिल करो उनसे मेहमानों को खाना खिलाया जाए। शमऊन ने जब वो दुपट्टा देखा तो बिलाल से कहा कि मैं कोई बेवकूफ आदमी तो नहीं हूं। उन्होंने कहा कि आप बेवकूफ तो नहीं है लेकिन ये जो दुपट्टा और चादर है ये नबी मेहरबान सरवरे कायनात नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का है। उसने दोबारा वो चादर देखा और लपेट कर बिलाल के हवाले किया और सामान भी दिया, खुराक का सब कुछ इंतजाम भी किया
اور بلال کو پیغام بھی دیا کہ جاؤ فاطمہ کو اطلاع دے دو کہ اس شمعون نے آج اسلام قبول کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں، ہم صلاح الدین کی بات کرتے ہیں نا، جب وفات پا گئے تو 60,000 دینار اس پر قرض تھا۔ ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں نا، یہی فرمایا تھا کہ میرے لیے اپنے پرانے چادر ہی کافی ہے کفن کے لیے۔ ہم حضرت عمر ابن خطاب کی بات کرتے ہیں نا، تو جب فوت ہونے لگے تو وصیت کی کہ مجھ پر جو قرضہ ہے وہ بنی عدی قبیلہ ادا کرے، اگر ان کے ساتھ پیسہ نہ ہو تو پھر قریش ادا کرے۔ اس لیے ہمارا یہ جو مورچہ ہے، ہمارے جو کامیابی کا راز ہے، بخدا کل بھی وسائل میں نہیں تھا اور آج بھی وسائل میں نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہماری امتحان ہے کہ کیا ہم لوگ پاکستانی ملت کو اس کی پشت پر کھڑا کر سکتے ہیں؟ اور ظاہر بات ہے کہ جب تک پاکستان پر یہ سیاسی دہشت گرد مسلط ہے، معاشی دہشت گرد مسلط ہے، مسلح دہشت گرد مسلط ہے، پاکستان نہ کشمیر کا ساتھ دے سکتا ہے، نہ پاکستان غزہ کے لوگوں کا ساتھ دے سکتا ہے، نہ اراکان کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ حالات کا یہی تقاضا ہے کہ اس ملک میں انقلاب برپا ہو اور اس ملک کی امامت اسلامی قیادت کے ہاتھ میں ہو، اور آپ کے ساتھ اب یہی مناسب موقع ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان گلیوں اور کوچوں میں ہم لوگوں کو بیدار بھی کریں گے، مسجد کو مرکز بھی بنا لے، قرآن کریم کی نور سے اپنے سینوں کو منور بھی کر لے، اور کامیابی اور فتح پر ایمان اور یقین کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مکالمہ کرے، بات کرے، پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ نصر من اللہ و فتح قریب وبشر المؤمنین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔